مسلح افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلح افواج کو غیر قانونی غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے۔ توقع ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے۔ مسلح افواج کو ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ مسلح افواج کے بارے میں مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ بعض سیاسی قیادت ایسی گفتگو کر رہی ہے۔ غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا، یہ میرا ایمان ہے کہ جتنے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کر دیں، 20 لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ قوم ان ڈاکوؤں کی جو امریکہ سے سازش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں، کبھی پاکستان قوم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ کبھی امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں میر جعفر اور میر سعادت سازش کا حصہ بنے۔ منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہو گئی، لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ جدھر بھی لوٹے جائیں گے ان کے خلاف غداری کے نعرے لگیں گے۔ کسی کو شریف خاندان کی طرح جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خطاب کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ قومی اداروں کے خلاف سازشی بیانیاں گھڑنے والا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ ایبٹ آباد میں قومی اداروں کو چیلنج کرنے پر قانونی کارروائی کریں گے۔ عمران نیازی سیاست نہیں پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی انا، تکبر اور جھوٹ پر پاکستان قربان نہیں کر سکتے۔ خانہ جنگی کی سازش کو کچل دیں گے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ جھرلو الیکشن سے آگے آئے، مکمل ناکام ہوئے۔ الیکشن کب کرانے ہیں اتحادی پارٹیاں مل کر فیصلہ کریں گی۔ پی ٹی آئی کو انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسا ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ لانگ مارچ بلا جواز ہے۔ ہم نے کون سا دھاندلی زدہ الیکشن لڑا؟ 2014 کے دھرنے میں معیشت کو نقصان ہوا۔ آٹے کا مسئلہ حل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ آئین اور قانون کے دائرے میں جلسے ہوں گے تو حکومت سپورٹ کرے گی۔ مارچ کو خونی کرنے کی بات کریں گے تو قانون خود راستہ بنائے گا۔ قوم میں تقسیم نہیں، تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی شخص خود کو آگ لگانا نہیں چاہتا، نہ آگ لگائے گا۔ یہ لوگ محض ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ ایک پارٹی لیڈر کارکنوں کو تلقین کرتا ہے کہ چور اور غدار کہنا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پیٹرول قیمت میں ماہانہ 118 ارب روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ 40 ارب روپے کے بجٹ میں حکومت چلاتے ہیں۔ شوکت طرین نے غلط کہا تھا کہ تیل کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے 2.5 سال ایمنسٹی دیے رکھی اور ہمارے ہاتھ باندھ گئے۔ اس سال اور اگلے سال آئی ایم ایف کو 45 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں۔ جنہوں نے 4 سال آپ کی زبان بندی کی، ہماری زبان بندی کی، پارلیمان کی زبان بندی کی، آج وہ اپنی بد زبانی، بد اخلاقی کے ذریعے جو پاکستان کی عوام کو پیغامات دے رہے ہیں، آج بھی ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کی اور اس کے اندر بھی جو غلاظت اڈیلی وہ بھی پاکستان کی عوام نے دیکھی، اور اپنی تربیت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान नियाज़ी खुद चोर हैं। फौरन फंडिंग लेकर साजिश आपने पाकिस्तान के खिलाफ की। आज इमरान खान कंटेनर पर गद्दारी के फतवे बांट रहे थे। फतवे इसलिए लगा रहे हैं कि कोई उनसे कारकर्दगी का सवाल न करे। आपने 4 साल सिर्फ झूठ बोला और इल्ज़ामात लगाए। आपकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए। भी हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और फोकस करें अवाम की बेहतरी और उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए, तो फिर ज़ाती जो इश्यूज़ हैं वो फिर दब जाएंगे। मगर इसके लिए बड़ा दिल करना होगा। वील हैव टू राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ज़ाती जो पसंद नापसंद से ऊपर होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत का फलाही मंसूबों को ताअत्तुल में डालना कौमी मफादात के मनाफी है। PKLI को सियासत की भीन चढ़ाया गया। ये हस्पताल दुखी इंसानियत की खिदमत करेगा। जिनके पास वसाइल नहीं उनका मुफ्त इलाज होगा। मसाइल पहाड़ जैसे हैं। हम तमाम सियासी जमातों को, जो हमारी इत्तेहादी भी हैं, जो आज हमारी मुखालिफ भी हैं, आवाम देख रही है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका तजुर्बा, उनकी तारीख पे जो नज़र है उससे गहरी है। लेकिन एक सियासी कारकुन के नाते मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान एक दुराही पे खड़ा है और फैसला हमने करना है हिकमत के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ। सियासी जमातों को मईशत की बेहतरी के लिए इमरानी मुआहिदा करना होगा। कभी अपनी ज़ात की बात नहीं की, हमेशा मुल्की मफाद के लिए काम किया। अल्लाह ने हकूक़ुल इबाद का हुक्म दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि अवाम की खिदमत का मौका मिला। कई वज़ीर आला आए और चले गए। जिसने अच्छे काम किए वो याद रहते हैं। कामयाब सियासतदान वो है जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है। वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं की कराची में मुलाकात। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत का ताजिर बिरादरी के मसाइल के हल के लिए बिजनेस लाइजन कमेटी बनाने का फैसला। ताजिर बिरादरी का कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन के अजाले पर इजहार तशक्कुर। आप वज़ीर ख़ारजा हैं, दुनिया को पैगाम दें कि हमें एड नहीं बल्कि ट्रेड चाहिए। ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कराची वाटर बोर्ड का इजलास। पीने के पानी की चोरी, ज़िया और लीकेज के खात्मे के लिए वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स पुलिस, रेंजर्स और मुतल्लिका इंजीनियर्स के साथ मिलकर आइंदा 2 रोज़ में गैर कानूनी कनेक्शंस, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करेगी। मुराद अली शाह की मीटर नस्ब करने और आबादी के लिहाज से पानी मुहैया करने की हिदायत। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। इलेक्शन कमीशन को मुनहरिफ अरकान के जमा कराए गए जवाबात की कॉपी मौसूल। तमाम मुनहरिफ अरकान ने रेफरेंसेस को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। हमने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, अभी तक पार्टी का हिस्सा हैं। हमारे खिलाफ कोई शवाहिद या मटेरियल फराहम नहीं किया गया। मुनहरिफ अरकान का जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। मुस्ताफ़ी चेयरमैन वापडा ने गुज़िश्ता रोज़ अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल किया था। मैं चाहूँगा कि KP में जो वज़ीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूँगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूँगा इंशाअल्लाह।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की तर्ज पर सस्ता आटा देने की मिसाल। वज़ीर आज़म के ऐलान के अगले ही रोज आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 14 अशिया महंगी। आटा, चीनी, घी और चावल पर सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला। महंगाई का नया झटका। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए, कराची में 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 458 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंचने पर अवाम परेशान। सफेद पोश अफराद का मुर्गी का गोश्त खाना मुहाल हो गया। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। सिंध में पानी की बढ़ती किल्लत का मामला। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह का हंगामी बुनियादों पर मामले के हल का मुतालिबा। कहती हैं कि सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जो लम्हा फिक्रिया है। ईद के बाद सिंध में पानी की खतरनाक हद तक कमी से काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। फसल की बुआई जल्द होने के बाइस सूबे को हंगामी बुनियादों पर पानी की जरूरत है। इरसा की रिपोर्ट परेशान कुन है। सिंध में पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्विस हैं। सिंध का पानी गरीब हारी को नहीं पहुंच रहा। पंजाब को मुर्द इल्जाम ठहराकर सूबाई मुनाफरत की सियासत की जा रही है। पंजाब का किसान और सिंध का हारी जरदारी माफिया से तंग हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इस्लामाबाद में उलमाए कराम और मजहबी और दीनी शख्सियात की मुलाकात। साजिश के नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर तशवीश का इजहार। अदालती कमीशन के क़याम और तहकीकात के मुतालबे की तायीद का ऐलान। करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी गई। इस्लामोफोबिया के तदारुक और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए इमरान खान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहरियों को सहूलियात की फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ। ट्वीट में कहा, ख़वातीन और तालिबात के लिए आलमी मयार की सहूलत का एहतमाम लायक तहसीन है। इससे ख़वातीन और बच्चियों को अपनी तालीम के तसलसल में भी मदद मिलेगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर कहते हैं, नाअहल इंपोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा। हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। महंगाई कम करने के दावे का हाल भी पेट फाड़ कर लूटी गई दौलत वापस निकलवाने की बड़कों जैसा ही हो रहा है। जरदारी को तो लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर न घसीट सके। एक माह में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।